So now we'll be continuing with social stratification. See, last lecture में we studied about the difference between social stratification and social inequality, and also we took a look into the difference or comparison of natural inequality versus social inequality. उसमें हमने दो मेन थिंकर्स को पढ़ा था, right? Basically we talked about Rousseau's conception of inequality and how Andre Bete he conceptualized inequality and how he differentiated between natural differences and inequality, and how these natural differences get converted into inequality, and this creation, reproduction and perpetuation of inequality, he says, is always a social process. Inequality is always socially created, right? It is created socially and culturally, right? Nature never creates inequality, nature only creates differences, right? ये सब हमने पढ़ने की कोशिश की थी. See, in this lecture I will be talking about equality, right? Equality के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. इसमें हम पियर बोर्दियू को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, हाउ ही व्यूज इनइक्वालिटी, एंड ही गिव्स 3 टाइप्स ऑफ कैपिटल: सोशल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल एंड इकोनॉमिक कैपिटल, राइट. और हमने जब मार्क्स का क्रिटिसिज्म किया था तो उसमें हमने यही देखा था कि देर इज नॉट ओनली वन फॉर्म ऑफ कैपिटल, राइट, रादर देर कुड बी मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ कैपिटल. और पियर बोर्दियू उसी के बारे में बात करते हैं, तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, राइट. Similarly, we will also be talking about inequality and conflict, inequality and order, right? तो उसमें हम आंद्रे बेते के हार्मोनिक और डिसहार्मोनिक सिस्टम्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे. आंद्रे बेते also gave a concept of cumulative inequality and dispersed inequalities, वो भी पढ़ेंगे. फिर इसके बाद हम जेरार्ड लेस्की के बारे में पढ़ेंगे, who gave the concept of status inconsistency and status crystallization, right? And we will be concluding our lecture by analyzing the works of Dipankar Gupta, right? उन्होंने stratification के बारे में काफ़ी लिखा है, right? तो हम उसमें hierarchy और stratification को भी देखेंगे कि how hierarchy relates to stratification, और उसमें वो differences को भी कैसे देखते हैं, right? So this is the overview of the lecture, right? So I'll be starting with see, basically let us talk about equality, right? Equality. ठीक है. See, equality in a general sense, it means equality, राइट. अगर उसे हम लिटरल सेंस में देखते हैं, सो इक्वालिटी लिटरली मीन्स बीइंग आइडेंटिकल और इक्वल, राइट. बट हमने देखा था कि नेचर में देयर आर ऑलवेज डिफरेंसेस. नो टू इंडिविजुअल्स आर आइडेंटिकल और नो टू इंडिविजुअल्स कैन बी इक्वल, राइट. सो वी स्टडीड हाउ नो टू इंडिविजुअल्स राइट कैन बी इक्वल और आइडेंटिकल. ठीक है. हमने देखा था इंडिविजुअलिटी का ही मतलब है कि इंडिविजुअल आर यूनिक, राइट. ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, राइट. देयर आर नेचुरल डिफरेंसेस, इसको नेचुरल डिफरेंसेस बोलते हैं बेते, राइट. और इसी को नेचुरल इनइक्वालिटी बोलते हैं रूसो.
There are always natural differences of age, sex, color, that is the skin, color of skin or race, height, right? So there are always differences. Gender, sex के basis पे भी difference होता है. So there are differences. No two individual can be identical or equal, right? तो equal तो आप मैथ्स में कैसे देखते हो? X equal to Y, right? So both are the same thing. So no two individuals can be same. So equality को क्या है? It is seen differently, right? Equality is seen differently in sociology, right? In sociological sense, or using sociological imagination or sociological conceptualization or sociological understanding or sociological interpretation, we can say equality is basically about treatment, right? Equality is basically about treatment, right? Equality in sociology as well as ethics, right? In equality pertains to fairness and justice. आपको एग्जांपल देता हूं. जब एक मदर ये बोलती है कि मेरे लिए मेरे सभी ऑफस्प्रिंग्स, बेटे बेटियां सभी बराबर हैं, मैं किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेट और डिफरेंशिएट नहीं करती, राइट? एवरीवन इज सेम और एवरीवन इज इक्वल फॉर मी. मैं दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस नहीं समझती हूँ, राइट? नाउ बेसिकली हियर it does not mean that a person who is 15 to 18 years old, right? उनका ऑफस्प्रिंग 15 to 18 years old होगा और एक होगा जो 6 to 7 years old होगा. दोनों की सेम ट्रीटमेंट नहीं हो सकती है. फेयरनेस और जस्टिस अगर आइडेंटिकल ट्रीटमेंट होगी तो फेयरनेस और जस्टिस नहीं हुआ. फॉर एग्जाम्पल जो 15 से 18 ईयर्स का जो है उनका ऑफस्प्रिंग और उनका जो बच्चा है, तो उसकी जो है मेंटल और फिजिकल एज के हिसाब से उनकी कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, छोटे बच्चे की कम होगी, राइट? तो इक्वल फूड नहीं दे सकती मदर, राइट? तो हेयर इक्वालिटी डज नॉट मीन कि ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली. इट मीन्स दिस ट्रीटमेंट शुड बी proper, fair and just, right? So equality pertains to treatment, that is fairness and justice, right? So this means equality in sociology, right? It means absence of discrimination, right? Or extending privileges to some and disabilities to some, and disabilities to others, right? तो हम सोशियोलॉजी में इक्वालिटी को ऐसे देखते हैं, ठीक है? सो बेसिकली इक्वालिटी इज बेसिकली अ मॉडर्न bourgeois concept, and it is linked to modernity. How is it linked to modernity? उससे पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा कि inequality is the normal feature of pre-industrial societies, right? Pre-industrial societies, that is ancient and feudal societies, right? Pre-industrial societies. उसमें क्या है? inequality को, right? inequality of gender, inequality of race, inequality of color, inequality of caste, इट वॉज कंसिडर्ड नेचुरल, राइट? उसके पीछे आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशंस दी जाती थी और हमने देखा था कैसे इनइक्वालिटी प्रोड्यूस की जाती थी थ्रू आइडियोलॉजी, थ्रू लेजिटिमेसी, थ्रू रैशनलाइजेशन, थ्रू जस्टिफिकेशन. सो इनइक्वालिटी वॉज कंसिडर्ड एज नेचुरल, राइट? इट वॉज कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल विद इन सोसाइटी, राइट? इसीलिए क्या है, क्लर्जी सबसे ऊपर थी, एरिस्टोक्रेट्स नीचे थे और सबसे नीचे कॉमनर्स थे. ऐसे ही कास्ट सिस्टम में था. सो इनइक्वालिटी वाज इंटीग्रल फीचर ऑफ एवरी
pre-industrial society, and it was seen to be as natural, proper, fair and legitimate due to ideological justifications and rationalizations, right? ऐसे ही चर्च ने इनइक्वालिटी परपेचुएट की फ्यूडल यूरोप में थ्रू आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन एंड रैशनलाइजेशन थ्रू द रिलीजियस टेक्स्ट, और ऐसे ही हिंदू रिलीजन और सोसाइटी में हिंदू आइडियोलॉजी जो थी, धर्मशास्त्र जो थे, राइट, उन्होंने क्या है इनइक्वालिटी को कहीं ना कहीं जस्टिफाई किया, लेजिटिमाइज किया और इंस्टीट्यूशनलाइज किया सोसाइटी में थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट, राइट. सो इक्वालिटी is a modern bourgeois concept. It is linked to modernity. Now we will see कि how is it linked to modernity, right? ठीक है. See, basically हमने ये देखा था कि इक्वालिटी के लिए जो फाइट हुई थी, राइट, इक्वालिटी के लिए जो फाइट हुई थी इन फ्यूडल यूरोप, द फाइट फॉर इक्वालिटी इन फ्यूडल यूरोप, right, was launched in the form of French Revolution. And by whom? This French Revolution was under the leadership of commoners, and especially the bourgeois sections of the commoners, right? The people who were affluent, right? Bourgeois sections of the commoners, the people who were affluent, who were rich. And when I talk about affluent and rich people in commoners, I talk about traders, merchants, right? I talk about the typical middle class sections of the society, such as doctors, lawyers, professional occupations जिनके थे. तो वहाँ पे उस सोसाइटी में उनका जो स्टेटस था, राइट, स्टेटस इज डिफरेंट फ्रॉम क्लास, वेल्थ. वेल्थ में क्या थे? वेल्थ हिरार्की में दे वर एट द टॉप. दे had huge amounts of money generated from the profitable trade. Huge surplus था उनके पास. और उन्होंने क्या है, मोनार्की, फ्रेंच मोनार्क को भी लैंड किया था, राइट. सो फ्रेंच मोनार्क वाज इंडेप्टेड टू दिस ट्रेडर्स एंड लैंडर्स एंड मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स. बट द एस्टीम और ऑनर और स्टेटस in that hierarchy, they were at the bottom most. Like they were at the bottom of this status or esteem or prestige hierarchy, whereas in the class hierarchy they were at the top, right? So there was a kind of asymmetry between the two hierarchies. और जब मैंने बोला था it will lead to relative deprivation, हमने मर्टन में पढ़ा था, राइट. I'll be talking about this concept further जब मैं बात करूंगा जेरार्ड लेंस्की की इसी लेक्चर में, राइट. सो दैट इज व्हाई दे रिवोल्टेड. और फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स क्या थे? फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स क्या थे? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. सो इक्वालिटी वाज वन ऑफ द कोर आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट. सो दिस इज हाउ वी कैन लिंक इक्वालिटी एंड मॉडर्निटी. ठीक है. द थर्ड थिंग आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज इक्वालिटी. बेसिकली हम तीन टाइप की बोल सकते हैं. बेसिकली मैं दो टाइप्स को मर्ज करूंगा, राइट. आई विल बी मर्जिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, बट दे आर डिफरेंट टू एन एक्सटेंट, बट उनका ओवरलैप है काफी. वन इज पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, राइट. तो सबसे पहले इक्वालिटी जो आई समाज में, जिसके लिए फाइट हुई, रिवॉल्यूशंस की गई, वो भी एक फेस में इक्वालिटी आई है, राइट. सबसे पहले आई पॉलिटिकल इक्वालिटी, देन केम सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड देन केम जेंडर इक्वालिटी, राइट. एट लीस्ट नॉट इन द फुल सेंस ऑफ द टर्म, बट एट लीस्ट रिवॉल्यूशंस और द फाइट फॉर इथिकल ट्रीटमेंट, फेयरनेस एंड जस्टिस वर लॉन्च्ड इन दिस मैनर, इन दिस फेजेस, राइट. सबसे पहले पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए फाइट होगी, फिर सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी की फाइट होगी, और अल्टीमेटली जेंडर इक्वालिटी के लिए फाइट होगी, राइट. इक्वालिटी भी हम फेसेस में क्या है ट्रेस कर सकते हैं.
सो सबसे पहले आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज पॉलिटिकल इक्वालिटी, और इसके लिए टर्म है फॉर्मल इक्वालिटी। फॉर्मल इक्वालिटी, राइट। सो इट इज बेसिकली पॉलिटिकल इक्वालिटी। ठीक है। सो फॉर्मल इक्वालिटी में क्या आएगा? बेसिकली एवरीवन, राइट, everyone will be equal in the eyes of law. Everyone will be equal in the eyes of law. So formally, legally, everyone is equal. So that is why it is known as formal equality, right? So it basically means equality before law. Before law, right? So it means कि state will treat all its state will treat all its citizens equally, right, without any preferable treatment or discrimination. So everyone will be considered equal in the eyes of law. Everyone will be considered equal in the eyes of law. So political equality, it also led to political empowerment, and we can say political emancipation, right? So this is formal equality, right? तो यहाँ पे क्या है? पॉलिटिकल इंपावरमेंट, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन होगी, राइट? और आपको पता होगा कि जैसी फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी उसके बाद नेचुरल राइट्स ऑफ मैन वर एस्टेब्लिश्ड। नेचुरल राइट्स ऑफ मैन वर एस्टेब्लिश्ड पोस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो दिस नेचुरल राइट्स ऑफ मैन, जब हमने पढ़ा था लॉक के बारे में, उसमें हमने देखा था नेचुरल राइट्स ऑफ मैन विच आर एक्सटेंडेड टू मैन बाय नेचर इन द स्टेट ऑफ नेचर, दैट इज ऑल मैन। इट सिंस इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट ऑफ नेचर, इट मीन्स all men are born free and equal, राइट? आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे तो ये स्टेटमेंट पढ़ोगे आप, ऑल मैन आर बोर्न फ्री एंड इक्वल, फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट? दिस वाज वन ऑफ द स्लोगन, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट? सो दीज नेचुरल राइट्स ऑफ मैन, दे आर एक्सटेंडेड to men, right? So these are inalienable rights, right, which could not be snatched away, which could not be separated, or which could not be alienated or externalized from an individual, right? They are intrinsic to the individual, they are given by the nature, right? So it means equality before law. Political emancipation हुआ, right? यहाँ पे आपको मिलेगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, right, or the right to contest elections, the right to contest elections. इसका विवरण अगर आपको याद हो, फॉर्मल इक्वालिटी, ये हमारे संविधान में भी प्रियम्बल में सबसे पहले इसको बात की जाती है। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, राइट, इट इज रिटन इन प्रियम्बल। तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इट मीन्स फेयरनेस, इक्वालिटी, ट्रीटमेंट, राइट? ठीक है। सो बेसिकली सी 1 2 3, तो मैं ऐसे क्या है अलग अलग डायमेंशंस आपको बता रहा हूं। इन्हीं डायमेंशंस को आप इन पॉइंट और शॉर्ट पैराग्राफ फॉर्मेट में क्या है आप इन्हीं को क्या है नोट्स बना सकते हैं, राइट? एंड आई विल बी प्रोसीडिंग इन दिस मैनर फ्रॉम नाउ ऑन, ठीक है?
second phase of inequality, right? First phase formal equality, right? Second phase of equality, ठीक है. See, these are phases as well as types of equality, ठीक है. तो बेसिकली हम आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट इट अगेन. पीटर सॉन्डर्स वो इक्वालिटी के बारे में अपना कंसेप्चुअलाइजेशन देते हैं. इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, राइट. सेकेंड दैट इज सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी. सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी. See, there is a difference between social equality and economic equality, right? But I am merging the same because there is a lot of overlap between the two. ठीक है. See, इसकी बात कब होने लगी थी सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी की? पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, राइट? तो फॉर्मल इक्वालिटी आ गई, पॉलिटिकल इक्वालिटी दी गई लोगों को, ठीक है. सी पॉलिटिकल इक्वालिटी भी सभी को नहीं दी गई. यहाँ पे भी काफ़ी क्राइटेरिया थे, सभी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं दिया गया था. अगर हम टाइप्स देखें तो हम इसमें ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं जनरली, लेकिन स्पेसिफिकली जाके देखें, वुमेन वर नॉट एक्सटेंडेड सिटीजनशिप, राइट? सिटीजन क्या होते हैं? जिनके राइट्स और ड्यूटीज होते हैं. वुमेन वर नॉट एक्सटेंडेड सिटीजनशिप मतलब दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स और दे कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस और दे कैन नॉट इवन वोट. ऐसे ही जो पुअर थे उनको भी एक्सक्लूड किया गया था, राइट? क्राइटेरिया क्या था? दोज हु आर एजुकेटेड प्लस दोज हु पे टैक्सेस और दोज आर इकोनॉमिकली पावरफुल और दोज हु आर कंपैरेटिवली रिच, दोज हु पे टैक्सेस, ओनली दे आर एलिजिबल टू वोट. क्योंकि वही ये समझा जाता था कि दीज पीपल आर मोर मैच्योर, एजुकेटेड एंड दे कैन वोट इन अ मोर अप्रोप्रिएट मैनर, राइट? ठीक है. बट स्टिल दिस इज हाउ विल बी ट्रेसिंग इक्वालिटी. सेकेंड इज सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी, राइट? सी इसका कंटेक्स्ट क्या था, राइट? पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइट? वी कुड सी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइट? इट क्रिएटेड प्रोस्पेरिटी. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्रिएटेड प्रोस्पेरिटी, राइट? हमने पढ़ा था. as well as poverty. It created prosperity for few, right? And poverty for the majority, that is the masses, right? Only few were enjoying. So these Marx said these are haves. It created haves and have nots, राइट? तो काफी इकोनॉमिक डिफरेंसेस और इकोनॉमिक गैप आ गया था हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में. और हमने उस टाइम पे देखा भी था कि अर्बनाइजेशन हुआ था और वहां पे जो कंडीशन थी वर्कर्स की, दे वर लिविंग इन डिप्लोरेबल कंडीशंस, राइट? वर्कर्स वर लिविंग इन डिप्लोरेबल कंडीशंस. दे वर गेटिंग meager salaries, poor conditions and unsafe conditions of work. Daily so many accidents used to take place in these factories, right? And unsafe and unhygienic conditions of work were there. They were used to work for long hours, right? 16, 18, 20 hours of work they used to do daily, right? So they had no rights whatsoever, right? They were living in misery, right? They were living in misery. They were living in poverty, hunger and starvation, right? So this backdrop or this context or these consequences, it created the demand for economic justice. It created the demand for economic justice. और वहां से क्या है, बात स्टार्ट हो गई थी इकोनॉमिक इक्वालिटी की, राइट? क्रिएटेड द डिमांड फॉर इकोनॉमिक जस्टिस. और यहीं से क्या है, मार्क्सिज्म का राइज हुआ था. ठीक है. Second is social equalities. See, social equalities are basically which are
institutionalized in society, right, which are institutionalized in society on the basis of various ideological justifications, right? तो सोशल स्ट्रक्चर, राइट, सोशल स्ट्रक्चर क्या है? ऐसा है कि इट डिस्क्रिमिनेट्स राइट बिटवीन पीपल on the basis of their social identity, right? For example, on the basis of race, skin color, right? Slavery जिसकी हम बात करते हैं, caste, gender या फिर ethnicity, ठीक है? तो सोशली you are discriminating between different sections of the society. You could write it down. Socially, you are discriminating between different sections of the society on the basis of their social identities, right? So this is social inequality on the basis of race, on the basis of gender, on the basis of language, on the basis of religion, on the basis of caste. You are discriminating between the different categories of citizens. That is social inequality, right? ठीक है. Now see, now how do we get rid of socio-economic inequalities, right? Why are they called as social economic inequality? Because social discrimination overlaps with economic discrimination, right? So those people, right, except gender we can exclude, right? Those people who are discriminated on the basis of race, on the basis of caste, on the basis of ethnicity, they generally constitute the lower strata. Even if you measure it on the basis of wealth, on the basis of economic criteria, they mostly constitute the lower stratas, right? So their social and economic conditions overlap or merge with each other. Dalits basically are, अगर आप लैंडलेस को कैलकुलेट करोगे, people who are the, because land is a form of प्रॉपर्टी, वेल्थ, एसेट, अगर उसको मेजर करोगे तो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शंस ऑफ द पीपल हु आर लैंडलेस, दे आर दलित्स. ऐसी ब्लैक्स, दे स्टिल लाई एट द बॉटम ऑफ अमेरिकन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम. सो सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज दे टेंड टू ओवरलैप और मर्ज विद ईच अदर, बट नॉट ऑलवेज. उसको हम देखेंगे, राइट? ठीक है. सो दिस इज सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. तो इसके लिए, राइट, फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मल इक्वालिटी विच रिलेट्स टू पॉलिटिकल इक्वालिटी, राइट? सो पीटर सॉन्डर्स टॉक्स अबाउट फॉर्मल इक्वालिटी. सेकंड ही टॉक्स अबाउट इज हाउ टू गेट rid of economic inequalities. Then he proposes a solution that everyone should be treated, right, or should be extended equal opportunities, right? So यहाँ पे हम बोलेंगे there should be equality of opportunities. Equality of opportunities should be extended to all the people. ठीक है, right? What do we mean by equality of opportunity, right? So it means everyone, right? Every individual of the society right? Every individual of the society should have equal opportunity or equal chance
equal opportunity or equal chance to develop their skills, capabilities or abilities and talents, राइट। ठीक, अगर आपको इक्वालिटी इंश्योर करनी है सोसाइटी में, तो पीटर सॉन्डर्स बोलते हैं कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल द सिटीजन्स or to all the individuals who constitute that particular society, right? Once you provide equal opportunity, right, that everyone should get opportunity to develop their skill, ability, talent. Once you provide this common meritocratic platform, after that you judge people, after that you could arrange them in stratification systems, right? Once you have provided this common platform wherein people can develop their skills, ability and talent, right? तो ये प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू ऑल द सिटीजन्स, एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, राइट? एंड हाउ कुड स्टेट डू दिस, राइट? फॉर एग्जाम्पल, स्टेट को एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, राइट? हेल्थ फैसिलिटीज और मिनिमम इनकम. नाउ व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, सी हम पढ़ेंगे इन बेसिकली नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी एंड सोशल एक्सक्लूजन. वहां पे मैं आपको बताऊंगा द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी. नॉट एवरीवन गेट्स द सेम चांस और अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर एबिलिटी और स्किल और टैलेंट. डू पुअर पीपल receive the same kind of education that rich people receive? So there is inherent bias or prejudice that is prevailing within the system, and this inequality will further create more inequalities. It will widen the inequalities, right? So you have to provide a common platform to everyone. और अगर स्टेट ऐसी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करे अपने पब्लिक स्कूल्स के थ्रू विच इज कंपेरेबल टू द प्राइवेट एजुकेशन, देन यू विल नो दैट पुअर एंड द रिच विल बी कंपीटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्लेटफॉर्म, राइट? देन वी कैन मेजर कि हु हैज मोर स्किल्स, एबिलिटी एंड टैलेंट. Natural abilities could be there between individuals, not two individuals are identical, but first you have to provide this common platform, then we will talk about equality, right? तो जब एजुकेशन दिल्ली गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड करती है, राइट, आम आदमी पार्टी का बेसिक एजेंडा क्या है? कोर फोकस इज एजुकेशन, राइट? तो जब केजरीवाल बोलते हैं कि अब गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी बोलेगा, तो इसका मतलब क्या है? इसके एक इस स्टेटमेंट के पीछे एक सोशल सिग्निफिकेंस है, राइट? बिकॉज बेसिकली इंग्लिश इज सीन एज अ मेजर क्राइटेरिया टू टेस्ट द मेरिट, और इंग्लिश इज अ वेरी यूजफुल लैंग्वेज, राइट? और जिसका यूज करके, कम्युनिकेशन का यूज करके यू कुड अचीव मोबिलिटी विद इन द सोसाइटी, राइट? एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, राइट? जब आप हेल्थ फैसिलिटीज दोगे, बिकॉज हेल्थ इज रिलेटेड टू कॉग्निशन, हेल्थ इज रिलेटेड टू कॉग्निशन. अगर गरीब बच्चों का प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो क्या है? दीज आर द मेजरेबल स्टडीज आउटकम्स विच प्रूव कि ड्यू टू दिस पुअर न्यूट्रिशन among the poor, among the this lowermost strata of the society or the poor children, it inhibits their cognitive development. It inhibits their cognitive development. It inhibits their capability to learn or to acquire knowledge. और इसी की वजह से स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स भी उनके बीच में जाता है. सेम थिंग इज प्रिवेलिंग among the blacks also, right? So you have to provide proper health facilities. So through education, health, minimum income, you will be generating a common platform. And once you provided the common platform, then you can judge on the basis of meritocracy. Right?
I'll be providing you with an example of how social and economic inequalities are going to overlap. See girls, अगर आप गर्ल्स को देखो, स्पेशली जिन फैमिलीज में देर इज लैक ऑफ रिसोर्सेज, राइट, जिन फैमिलीज में देर इज लैक ऑफ रिसोर्सेज, वहां पे क्या है, बॉयज को देखोगे आप, अगर रिसोर्सेज नहीं है, प्रॉपर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, तो बॉयज को प्राइवेट स्कूल्स में भेजा जाता है और गर्ल्स को सरकारी स्कूल्स में भेजा जाता है. एंड दिस इज नॉट जस्ट समथिंग विच इज रिटन इन बुक, दिस इज द एक्चुअल कंडीशंस. इफ यू कुड विजिट योर विलेजेस, यू विल सी, आई हैव सीन इट पर्सनली. गर्ल्स को भेजा जाता है सरकारी स्कूल में, बॉयज को भेजा जाता है प्राइवेट स्कूल में. विद इन द फैमिली देयर इज अ बायस. बॉयज को ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया जाता है, गर्ल्स को कम प्रोवाइड किया जाता है. विद इन द फैमिली देयर इज कंस्ट्रेंट ऑफ रिसोर्सेज, राइट. और सिमिलरली even girls have to do domestic work, right? You could write these 3 points, right, on the basis of this education, on the basis of food or nutrition, plus girls has to provide a domestic, they have to do domestic chores or domestic work, right? So there is inherent social discrimination within the system. You have to get rid of these. Poor and rich similarly. Once you provide that equality of opportunity, then we can talk about merit, ability and talent, right? ठीक है. Now one more point that I want to talk about is the concept of life chances. Right, life chances. See, this is nothing but what I have written. Every individual of the society should have equal opportunity or chance. These chances are life chances. What could be life chances? Let me give you an example. Life chances आपकी क्या है? बर्थ स्टेज से या इवन उससे पहले स्टार्ट हो जाती है. एबिलिटी ऑफ एन इन्फेंट टू सर्वाइव, राइट, एबिलिटी ऑफ इन्फेंट टू सर्वाइव ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज और हर बर्थ, दैट विल वेरी अक्रॉस डिफरेंट स्ट्रेटा. जनरली पुअर जो है, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, इन्फेंट्स क्या सर्वाइव नहीं कर पाते, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है. सो दिस इज अ लाइफ चांस, राइट. व्हेन आई टॉक अबाउट इन्फेंट्स एंड देयर एबिलिटी टू सर्वाइव द फर्स्ट ईयर, दिस इज अ लाइफ चांस. इट विल स्टार्ट फ्रॉम द अर्ली एज. देन व्हेन दे ग्रो अप, हाउ अबाउट न्यूट्रिशन दे गेट? न्यूट्रिशन विल डिटरमाइन देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज, तो दैट विल शेप देयर फ्यूचर ओरिएंटेशन और देयर फ्यूचर कोर्स. ठीक है. सो दिस इज अ लाइफ चांस, न्यूट्रिशन, बिकॉज इट विल शेप योर कॉग्निशन, मेंटल एबिलिटी, लर्निंग स्किल्स. ऐसे ही जब मैं बात करता हूं उसके बाद एजुकेशन, किस टाइप की एजुकेशन मिल रही है, राइट, पुअर वर्सेस रिच. लाइफ चांस, पुअर का बच्चा जाता है सरकारी स्कूल में, रिच का बच्चा जाता है प्राइवेट स्कूल्स. So there is a qualitative difference in their learning. They are having different life chances. Sir, life chance is everything, not from the point of view of survival, but to even flourish, right, within the society. These are life chances. रिच का बच्चा अगर स्कूल में प्रॉब्लम भी आती है तो उसको प्राइवेट ट्यूशन से लगा दिए जाते हैं. सो दे हैव अ हेड स्टार्ट, दे हैव एडवांटेज. सो द सिस्टम इज कंप्लीटली अनइक्वल. उसके बेसिस पे आप, इक्वालिटी के बेसिस पे आप कंपिटिटिवली उनको आप कैसे जज कर सकते हो, राइट, अनलेस यू हैव प्रोवाइड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज. एंड फाइनली, even
even when you suffer from a chronic health condition, right? So your access to hospitals, medicines, that will also related to life chance, your survival. आपने देखा होगा उड़ीसा में कुछ 1-2 साल पहले ये न्यूज़ थी कि देयर वाज नो हॉस्पिटल नियर बाय टू द सेटलमेंट ऑफ ट्राइबल्स. तो अ फादर वाज कैरिंग हर डॉटर, राइट, ऑन अ कार्ट लोड. एक बोगी में उसको लेके जा रहा था फादर. दीज आर द कंडीशंस. सो लाइफ चांसेस वेरी. ठीक है. एंड द थर्ड फेस एंड द लास्ट फेस ऑफ इक्वालिटी इज जेंडर इक्वालिटी, राइट. लेटर ऑन क्या हुआ, with the rise of reproductive technologies, right, like pill or condoms, a woman could control their fertility, right. And not only that, आप देखोगे लास्ट फेज में क्या हुआ कि फेमिनिस्ट मूवमेंट्स भी क्या है, दे स्टार्टेड इन द 20th century. फेमिनिस्ट मूवमेंट्स विच एडवोकेटेड फॉर इक्वल राइट्स. यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो होगा आपका, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म होगा, वो हम देखेंगे, राइट. लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म, वो हम देखेंगे जेंडर वाले चैप्टर में, राइट. सो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के साथ क्या है, जेंडर इक्वालिटी आई, राइट. सो दिस इज द थर्ड फेज. एंड ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट सॉन्डर्स टॉक्स अबाउट इज इक्वालिटी ऑफ आउटकम. सी बेसिकली मैं आपको दो चीजें मर्ज करके बता रहा हूं. वन इज द सॉन्डर्स कंसेप्शन ऑफ फॉर्मल इक्वालिटी, देन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, देन इक्वालिटी ऑफ आउटकम. और दिस इज लिंक्ड विद the phases of equality, how equality actually emerged within the society. First is with the rise of modernity, it उसका origin और emerged हुआ था, it is linked to modernity, French Revolution, political equality या formal equality, then social equality, then gender equality, right. And last is equality of outcome, right. Equality of outcome basically means equal outcomes irrespective of differences in skill, ability and talent. ठीक है. नाउ बेसिकली ये बोला जाता है कि मार्क्सिस्ट आर इन द फेवर ऑफ इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स. सी देयर आर नेचुरल डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ देयर स्किल्स, एबिलिटी, टैलेंट, हाउ मच focus they are, how much hard work they are putting in, their dedication. It will vary across from individual to individual, right. So this is not the same. So there are natural differences जिसको रूसो नेचुरल इनइक्वालिटी बोलते हैं. तो अगर इनके बेसिस पे अगर क्या है, अगर कोई सोशल डिफरेंसेस नहीं है, सोशल इनइक्वालिटीज नहीं है, खाली नेचुरल डिफरेंसेस का ही एक वो है आपका फॉर्म एक्वायर कर रहे हैं स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम से, नेचुरल डिफरेंसेस के बेसिस पे आप उनको प्लेस कर रहे हो, देन दैट इज नॉट स्ट्रेटिफिकेशन, दैट इज बेसिकली एन हिरार्की ऑफ इंडिविजुअल्स विद देयर इज लॉट ऑफ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोबिलिटी, राइट. ठीक है. तो इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स मीन्स एब्सोल्यूट इक्वालिटी, right, irrespective of how much hard work you are putting in, irrespective of differences in capabilities and skills and talent, everyone will be getting equal rewards. तो मार्क्सिस्ट को क्रिटिसाइज करते हैं कि दिस इज नॉट जस्ट, राइट, दिस इज नॉट जस्ट विद इन सोसाइटी. ठीक है. वो बोलते हैं अगर आप इक्वालिटी ऑफ आउटकम फोकस करोगे
देन आपको गन पॉइंट पे और वायलेंस के थ्रू क्या है, आपको लोगों से काम करवाना पड़ेगा, क्योंकि कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा लोगों में काम करने का अगर आप डिफरेंसेस ऑफ रिवॉर्ड नहीं देते हो, सभी को सेम रिवॉर्ड देते हो, तो व्हाई वुड समवन विल बी पुटिंग इन मोर हार्ड वर्क. नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, यू आर सैक्रिफाइसिंग अ लॉट, you are living in total social isolation, you are putting in long hours of hard work. Why? Because there is a reward attached. On the basis of status and power, you will be occupying the topmost strata. This is the reward that is attached, and that is why you are pursuing the power and status you want to acquire within the society. That is why you are pursuing, that is why you are delaying your gratification. You could have gone to a movie. Like most of your friends who are not preparing for UPSC, you could have enjoying life. You could have been enjoying life. Why you are not doing that? So अगर ऐसा नहीं है तो no one will be working hard. तो आपको गन पॉइंट और वायलेंस के बेसिस पे you will be have to make people work hard. और यही बोलते हैं सॉन्डर्स कि सोशलिस्ट सोसाइटीज में यही तो हो रहा है. आपने क्या है, जैसे ही वेल्थ इनइक्वालिटीज अबॉलिश किया, वेल्थ हिरार्कीज जैसे फ्लैटेंड हुई, राइट, व्हाई वुड पीपल बी वर्किंग हार्ड? इसलिए रिप्रेसिव, दी सोशलिस्ट सोसाइटीज आर रिप्रेसिव सोसाइटीज. दिस इज द इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स. सी यहां पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा. मैंने बोला था कि दिस इज अ वेरी अनफेयर क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्स, अ वेरी सुपरफिशियल क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्स, राइट. अगर आपने जॉर्डन पीटरसन की वीडियोस देखी हो, उनका भी सेम क्रिटिसिज्म है मार्क्स का. लेकिन मार्क्स ऐसा कभी नहीं बोलते हैं कि देयर शुड बी एब्सोल्यूट इक्वालिटी. वो बोलते हैं कि क्लास ओनरशिप शुड वैनिश, देयर शुड बी कॉमनल ओनरशिप ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन. एंड व्हेन आई टॉक्ड अबाउट लेबर शुड बी द क्राइटेरिया, हमने बोला था लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, लेबर शुड बी द क्राइटेरिया टू डिस्ट्रीब्यूट रिवॉर्ड्स विद इन द सोसाइटी. सो एवरीवन विल हैव टू लेबर. ऐसा नहीं है कि कोई क्लास खाली ऑन करेगी और लेबर ही नहीं करेगी, एवरीवन विल हैव टू लेबर. और मार्क्स बोलते हैं टू ईच मैन अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टू ईच मैन अकॉर्डिंग टू हिज नीड. मार्क्स नेवर टॉक्ड अबाउट इक्वालिटी ऑफ आउटकम. इट इज अ रॉन्ग लेवल विच इज बीन इम्पोज्ड ऑन मार्क्स बाय अदर स्कॉलर्स, राइट. सो बेसिकली अगर आप इन डेप्थ में मार्क्स में जाओगे तो दिस इज द सेंट्रल लाइन ऑफ मार्क्स, टू ईच मैन अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, टू ईच मैन अकॉर्डिंग टू हिज. और लेबर इज द सेंट्रल पिलर ऑफ मार्क्सियन थ्योरी, लेबर थियरी ऑफ वैल्यू. So your monetary reward that you will be getting is on the basis of how much hard work you are putting in, right? ठीक है. So this is equality. अब हम various scholars के बारे में बात करेंगे, right? I'll be talking about 3-4 scholars, right? See, now I'll be talking about some 3 to 4 thinkers, and you could include these thinkers if any question comes pertaining to equality, inequality, stratification, hierarchy or natural differences, right? आंद्रे बेते, रूसो हम पढ़ चुके हैं, राइट. आंद्रे बेते को I'll be revisiting him again. आप डुमोंट को भी इंक्लूड कर सकते हो, पर उनको मैं डिटेल में डील करूंगा इन while covering social mobility, right? See, first thinker that I want to talk about is Pierre Bourdieu. See, Pierre Bourdieu says is that different individuals or people have differential access to resources, right? So not all individuals have equal access to societal resources, right? So he says that resources should not only be seen in terms of economic criteria or economic capital. हमने मार्क्स का क्रिटिसिज्म दिया था. He said resources
The societal resources should be seen in terms of three criteria, or there are three capitals, right? These are, and different people have differential access to these resources. ठीक है, तो ये तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल कौन सी होंगी? फर्स्ट इज द इकोनॉमिक कैपिटल, जिसको मार्क्स सिंपली कैपिटल बोलते हैं, राइट? हमने देखा था कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज अ रिसोर्स और इट इज अ मनी. In specifically economic or Marxian terms, we can say capital is a money which produces more money when reinvested, right? That is capital. So one could be economic capital. So different people have different access to resources. Different people have different quantum of capital that they possess, right? So economic capital में वो बोलते हैं it is related to economic criteria, wealth. Different people have different wealth, different income and assets. ठीक है. Second is the cultural capital. Right. These are the resources or advantages produced by culture or extended by culture to different people or to different strata differentially, right? बेसिकली कल्चरल कैपिटल को मेन वो लिंक करते हैं एजुकेशन से, राइट? डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी और एजुकेशनल लाइफ चांसेस. जैसे हमने देखा था कि कुछ लोग आईवी लीग्स में जाते हैं, कुछ नॉर्मल कॉलेज से पढ़ते हैं. जो लोग आईवी लीग से जाते हैं उनके पास एजुकेशनल कैपिटल है, राइट? दे कैन एंटर इनटू द मार्केट, दे कैन अर्न मोर. whereas the people who go to normal colleges, they lack cultural capital. और कल्चरल कैपिटल में हम क्या बोल सकते हैं विच इज रिलेटेड टू स्टेटस ऑल्सो, राइट? जैसे कल्चर आपको स्टेटस प्रोवाइड करता है. जैसे कल्चर कुछ लोगों को प्रिविलेजेस देता है, कुछ लोगों को डिसेबिलिटीज देता है. हमने देखा था जेंडर के बेसिस पे, मेल प्रेफरेंस, राइट? ऐसे हमने देखा था रेस के बेसिस पे, ऐसे हमने देखा था कास्ट के बेसिस पे. सो दिस इज द कैपिटल or resources which is provided or advantages which are extended by culture to certain sections of the society or to certain category of individuals or to certain social categories, right? Right. So basically ऐसी जो प्राइवेट स्कूल में जाता है उसके पास और जो जिसको जो ट्यूशन्स अफोर्ड कर सकता है उसके पास क्या है, ज़्यादा एजुकेशनल कैपिटल होगी, राइट? कल्चरल कैपिटल कैसे होगी? वो एजुकेशन कल्चरल कैपिटल कैसे है? बिकॉज एजुकेशन इज लिंक्ड टू कल्चर. नाउ व्हेन आई से कि अगर आप ट्राइबल्स को इंग्लिश में टीच करोगे, सी लैंग्वेज इज ऑलवेज रिलेटेड टू योर वर्ल्ड व्यू. लैंग्वेज इज ऑलवेज अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी. यू थिंक इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, यू एनालाइज एंड ब्रेनस्टॉर्म इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज विच यू स्पीक डेली, राइट? तो एज जब एक ट्राइबल बच्चा है उस पर आप इंग्लिश इम्पोज करोगे तो उसके लर्निंग आउटकम्स बहुत कम होंगे, क्योंकि उसका वर्ल्ड व्यू डिफरेंट है. वो डिफरेंट लैंग्वेज के टर्म्स में सोचता है. इसलिए जब फ्रीडम फाइटर्स बात कर रहे थे वर्नाकुलर एजुकेशन प्रमोट की जानी चाहिए, उसका रीजन क्या है? यही रीजन है. उससे आपकी लर्निंग आउटकम्स बढ़ते हैं. एंड दैट इज why should vernacular education in vernacular languages should be promoted, right? हम देखेंगे जब हम पियर बर्दू को डिटेल में पढ़ेंगे when I'll be talking about education and social change, right? उसमें पढ़ेंगे. Third type of capital he says is the social capital, right? And it is the capital in terms of your social contacts,
योर सोशल कॉन्टेक्ट्स और योर सोशल नेटवर्क्स। ठीक है, अगर आपके कॉन्टेक्ट्स और नेटवर्किंग अच्छी है तो आप क्या है अच्छी जॉब पा सकते हो थ्रू योर कॉन्टेक्ट्स, थ्रू रिकमेंडेशंस, राइट। सो बुर्दू बोलते हैं कि वन फॉर्म ऑफ कैपिटल could be transformed or converted into, or one form of capital could metamorphosize into another form of capital, right? कैसे? जैसे अगर आपके पास इकोनॉमिक कैपिटल है, वेल्थ है, रिसोर्सेज है, तो आप क्या है महंगी से महंगी एजुकेशन, प्राइवेट स्कूलिंग, प्राइवेट ट्यूशन्स ले सकते हो, बेटर से बेटर टीचर से आप पढ़ सकते हो, कोचिंग ले सकते हो, राइट। तो आप क्या है इकोनॉमिक कैपिटल के थ्रू क्या है आप कल्चरल कैपिटल भी एक्वायर कर सकते हो, राइट, कर सकते हैं। ऐसे ही जिसके पास सोशल कैपिटल है, जिसके नेटवर्क्स अच्छे हैं, फ्रेंड्स, नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, तो वो क्या है जॉब, मान लो उसको रिकमेंडेशन मिल सकता है काफ़ी अच्छी जॉब के लिए, उसको प्रेफरेंस मिल सकती है एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स, सिफारिश जिसको बोलते हैं। सो सोशल कैपिटल कुड ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू इकोनॉमिक कैपिटल, राइट। और काफ़ी लोगों को प्रोजेक्ट्स भी इसलिए मिलते हैं, टेंडर्स। अगर आप देखो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर टेंडर दिए जा रहे हैं, इट इज़ ड्यू टू why some politicians prefer certain industrialists. Why? Maybe because this industrialist had prior social contacts or social networks with those politicians, and when these politicians came into power, right, they would award these industrialist contracts, right. So it is like a kind of a nexus collusion or quid pro quo between two these different categories of individuals, right. So here social capital could be converted into economic capital, right. So basically different people have differential access to resources, right. Different people possess different quantum of these capitals, right. तो इसलिए क्या different people are not placed on an equal footing, they are not placed on a common platform, there is no equality of opportunity is not there. So different people have different opportunities or chances or life chances to gain mobility in society, right. इसलिए क्या है जो लोअर तबका नीचे ही रह जाता है, अपर तबका अपने नेटवर्किंग, इकोनॉमिक और कल्चरल कैपिटल के थ्रू क्या वो पोजीशन इलिट्स की मेंटेन करके रखता है। हम पढ़ेंगे, सी राइट मिल से भी लिंक करेंगे, राइट। सेकेंड इज second that I want to talk about is, again I want to visit Andre Bhete. She is a very important thinker when it comes to inequality and stratification. Andre Bhete along with Louis Dumont and Dipankar Gupta, these are 3 very important Indian thinkers. तो इनका आप नाम इंक्लूड करने की कोशिश कीजिएगा व्हेन एनी क्वेश्चन कम्स टू स्ट्रेटिफिकेशन, इनइक्वालिटी, हियरार्की, नेचुरल डिफरेंसेस, सोशल इनइक्वालिटीज और इक्वालिटी, राइट। इन टर्म्स में आप इंक्लूड करने की कोशिश कीजिएगा। सो बेसिकली ही टॉक्स अबाउट वन, ही डिफरेंशिएटेड बिटवीन नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी क्लासिफाइड। सेकेंड मैनर ऑफ हिज क्लासिफाइंग इनइक्वालिटी इज द क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी, inequality and dispersed inequality, ठीक है। cumulative inequality basically he says when we already said कि stratification or the distribution of rewards could be seen in terms of 3 different hierarchies: class, status and power, right. wealth, prestige and power, ठीक है।
So when he says, when, right, these hierarchies, when the hierarchies of wealth, right, when the hierarchies of wealth, prestige or status and power, right, are symmetrical, congruent or consistent with each other, congruent or consistent with each other, तो इसको इन्होंने बोला क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी। ऐसे ही अगर these three are asymmetrical, right, or inconsistent, या फिर हम बोल सकते हैं नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सो दिस इज डिस्पर्स्ड इनइक्वालिटी। तो बेसिकली मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? सी आई एम टॉकिंग अबाउट थ्री हियरार्कीज, दिस थ्री हियरार्कीज, ठीक है। एक ऑफ हियरार्की होगी आपकी वेल्थ की, इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे। एक हियरार्की होगी आपकी प्रेस्टीज और स्टेटस की, और एस्टीम और ऑनर की, राइट। और एक हियरार्की हमने देखा था पावर की। Now different people could be placed along these hierarchies and they will have differential access to rewards or recognition within the society, right? तो क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी क्या है? जब ये तीनों हियरार्कीज सिमेट्रिकल होगी। इस लाइन का मतलब क्या सिमेट्रिकल? इसका मतलब ये है, ये पर्सन हु इज प्लेस्ड हायर इन वेल्थ हियरार्की, राइट, he also enjoys more esteem and when he also enjoys more power, right? तो इस इंडिविजुअल की तीनों हियरार्कीज के अक्रॉस अगर सेम और सिमिलर पोजीशन है, सेम स्टेटा को ऑक्यूपाई करता है, सो इट मींस दीज सिमेट्रीज आर हियरार्किकल, राइट। ऐसे ही अगर ऐसा है कि कुछ इंडिविजुअल्स वेल्थ पे तो हायर पोजीशन एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है स्टेटस की तो दे आर एक्वायरिंग लोअर पोजीशंस। अगर आप ऐसे प्लेसमेंट कर रहे हो इंडिविजुअल्स की इन स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम्स में, तो हम बोलेंगे दिस इज नोन एज असिमेट्रिकल प्लेसमेंट ऑफ दिस इंडिविजुअल्स एंड दिस इज नोन एज डिस्पर्स्ड इनइक्वालिटी। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। सी, मैंने सबसे पहले आपको बोला, फर्स्ट एग्जाम्पल दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज, लेट अस टॉक अबाउट क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी के मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज रिच, राइट। फॉर एग्जाम्पल इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, अमेरिकन वेस्टर्न सोसाइटीज, हु इज रिच, उसको एस्टीम और स्टेटस भी अच्छा मिलता है, राइट। ही इज कंसिडर्ड ऑनरेबल, स्टेटस अच्छा है, प्लस ही इज ऑल्सो अ पावरफुल इंडिविजुअल, पावर भी है उसके पास, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि मॉडर्न अमेरिकन सोसाइटीज में क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस और पावर क्या है, सिमेट्रिकल है। ऐसे मॉडर्न अमेरिकन सोसाइटी अरेंज्ड है, राइट। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, क्यूमुलेटिव इक्वालिटी है। यहाँ पे क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी है मॉडर्न अमेरिकन सोसाइटीज में। और अगर आप देखो सी राइट मिल्स की, जब वो पावर एलिट्स की बात करते हैं, सी राइट मिल्स ही टॉक अबाउट पावर एलिट्स, उसमें तीन टाइप के पावर एलिट्स की बात करते हैं। उसमें से एक पावर एलिट कौन सा होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट, दैट इज इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब हु आर रिच, प्लस दे आर पावर एलिट, सो दे एंजॉय पावर एज वेल, प्लस they get more recognition, esteem, honor और prestige in society, right? This is dispersed. इसी का अगर मैं opposite example देखूं, right? So these are advantaged sections of the society. अगर मैं disadvantaged sections की बात करूं,
उसमें अगर मैं क्यूमुलेटिव इक्वालिटी का देखूं, मतलब ऐसा इंडिविजुअल जो नीचे है प्लेस, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तब भी ये क्यूमुलेटिव ही होगी, तभी ये क्या है, सिमेट्रिकल है, तीनों में नीचे जगह पोजीशन पे प्लेस्ड है। असिमेट्रिकल जब होगा, एक जगह पे ऊपर होगा, एक जगह पे नीचे होगा, राइट। तो व्हेन आई टॉक अबाउट दलित्स, राइट, दलित्स आर पुअर और लैंडलेस, राइट, एज ए सोशल कैटेगरी इफ यू सी, और अपने पॉवर्टी एस्टिमेट्स हम उठाते हैं, राइट, तो दलित्स का ओवरवेलमिंग प्रेजेंस है वहाँ पे। सो दलित्स आर द पुअर एंड द लैंडलेस पीपल, सबसे ज़्यादा लैंडलेस दलित्स ही हैं। और क्वांटम और परसेंटेज देखा जाएगा, पीपल हु आर लैंडलेस, उसमें क्या ओवरवेलमिंग प्रेजेंस आपको दलित्स की देखने को मिलेगी। ऐसी दलित्स इन टर्म्स ऑफ कास्ट स्टेटस they are at the bottom of the stratification structure, this closed stratification structure of caste, बॉटम पे है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि उनको स्टेटस और एस्टीम और रिकॉग्निशन नहीं मिलती, दे आर लुक्ड डाउन एट, ठीक है। अगर आप नॉर्मल लिंग्विस्टिक्स देखो, जैसे जो यूज किए जाते हैं दलित्स के लिए, राइट, बड़ी डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेटरी मैनर में क्या उनको एड्रेस किया जाता है, राइट, बड़ा ही लो समझ के एड्रेस किया जाता है। So also Dalits are mostly powerless and voiceless people. Until इसलिए हम दलित असर्शन की बात करते हैं, जब दलित अपने आप को असर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, मोस्टली दे आर पावरलेस एंड वॉइसलेस, राइट। सो दिस इज क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी। नाउ व्हाट आर द, इसी को जेरार्ड लेंस्की क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी को क्या बोलते हैं? ही सेज क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी को दूसरा टर्म उनका अपनी अलग थ्योरी है, वो बोलते हैं स्टेटस क्रिस्टलाइजेशन। इसके लिए वो ये टर्म यूज करते हैं, राइट। दैट इज when individuals enjoy similar position or status across all hierarchies, जब उनका सिमिलर पोजीशन, राइट, दिस स्टेटस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस स्टेटस, हमने पढ़ा था, दिस स्टेटस इज योर पोजीशन इन द सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। when individuals they enjoy similar position or status across all hierarchies, उसको उन्होंने बोला स्टेटस क्रिस्टलाइजेशन, राइट। तो अगर सेम स्टेटस है अक्रॉस ऑल हियरार्कीज तो उन्होंने इनको बोला स्टेटस क्रिस्टलाइजेशन। ऐसे ही नाउ second thing I want to talk about is status inconsistency. Right. So when individuals enjoy different position, or enjoy की तरह बोलो extended, right? When individuals are extended, right? different position or status across different hierarchies, तो उसको बोलेंगे स्टेटस इनकंसिस्टेंसी है, राइट। स्टेटस की इनकंसिस्टेंसी है, असिमेट्रिकल स्टेटस है, इनकॉन्ग्रुएंट हियरार्कीज है, राइट। इसको पूरा इस डेफिनेशन को आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो बात वो बोलते हैं कि अगर स्टेटस क्रिस्टलाइजेशन है तो सोसाइटी में क्या है, ऑर्डर होगा। सोसाइटी में क्या होगा, ऑर्डर होगा, सोशल ऑर्डर होगा, राइट। सोसाइटल ऑर्डर और सोशल ऑर्डर होगा। अगर स्टेटस इनकंसिस्टेंसी है तो सोसाइटल कन्फ्लिक्ट होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम इसको लिंक कर सकते हैं कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव डेप्रीवेशन ऑफ मर्टन। रिलेटिव डेप्रीवेशन ऑफ मर्टन, द पर्सन हु आर रिलेटिवली वेल ऑफ, the person who are relatively well off, those are the ones who feel relatively more deprived.
and they engage in what? Collective action, protest, revolutions, movements, right, to change their position, to include social change. और अब मैं इसका एग्जाम्पल देके आपको डिस्पर्स्ड इनइक्वालिटी और स्टेटस इनकंसिस्टेंसी का एग्जाम्पल देता हूँ, राइट. सी, अगर दलित बिल्कुल पावरलेस है, वॉइसलेस है, लोअर स्टेटस है, पुअर है, then they cannot organize or assert themselves. They are not empowered enough to assert themselves. Only when a person is empowered, only then he will be able to assert himself, right? तो cumulative inequality में क्या है और status crystallization में क्या है? There will be social order, there will be no conflict present within the societies, right? When there is asymmetry. और इसी हिसाब से अगर हम देखें, अगर dispersed inequality होगी तो हम बोल सकते हैं, तो वहाँ पे क्या आएगा? कन्फ्लिक्ट होगा. मैंने आपको बताया था कि लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड एस्टेट. जब मैं थर्ड एस्टेट की बात कर रहा था, राइट, द कॉमनर्स, द ट्रेडर्स और मर्चेंट्स हु वर रिच, दे वर द रिच पीपल. तो वेल्थ हियरार्की में दे वर लाइंग एट द टॉप, राइट. वेयर एज इफ यू सी, बाकी जो हियरार्कीज थी उनके साथ वो कंसिस्टेंट नहीं थी. उनको क्या है, एस्टेट सिस्टम में सबसे नीचे रखा गया. क्लर्जी और नोबिलिटी ने हायर पोजीशंस एक्वायर की हुई थी, बल्कि इन्होंने क्लर्जी नोबिलिटी को डेट दी हुई थी. दे वर सो मच रिच ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, राइट. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एस्टीम, ऑनर और स्टेटस में वो लोअर लेवल पे थे, और इवन पावर भी एंजॉय नहीं करते थे. पावर मेनली बिलोंग करती थी मोनार्की और क्लर्जी को. So this is what case of dispersed inequality. So they, due to their, see, they were more empowered because they were rich, and they feel relatively deprived in comparison to the clergy and nobility, right? And that is why they engaged in collective action, protest movements, right? They collectively mobilized themselves, and thereby French Revolution happened, right? Collective action, protest. So you could link the concept of relative deprivation of Merton with status inconsistency of Lenski with dispersed inequality of Bethe, right? All these could be linked, and you could link it to then social change and social order, right? So all these different concepts could be linked. More you link them together and present an answer, more marks you will be getting in an examination, right? ठीक है. ऐसे ही अगर आप देखो, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ये मैं पहले भी दे चुका हूँ, रिलेटिव डेप्रिवेशन में दिए थे मैंने आपको ये एग्जाम्पल्स. अगर आप बात करो कि जो इंडियन मिडिल क्लास है, इंडियन मिडिल क्लास, राइट, स्पेशली द बुर्जुआ क्लास, उस टाइम पे, राइट, अगर आप देखो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, हु वर द फोरबियरर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, हु वर प्रोवाइडिंग लीडरशिप, हु वर मोबिलाइजिंग द मासेस. These were the people who belonged to the uppermost strata of the society. They were more aristocratic in nature. अब गांधी के फादर को देखो, he was the दीवान, a finance minister, right? गुजरात में जो उनकी प्रिंसली स्टेट थी, कौन सी थी आप वो उसको देखिएगा, राइट. और ऐसे ही राजा राममोहन रॉय जी जो थे, एरिस्टोक्रेसी से बिलोंग करते थे, लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग करते थे, राइट. So they had these kind of advantages, and they get access to British education, wherein they got to know about equality before law, the natural rights of men. They got to know about the French Revolution, right? But उनको जो honor और esteem दिया जाता था और status था British political empire में, वो lower था compared to the British elites there. Plus, they were also not given access to power. Indians were kept in subordinated services. They were not given access to the higher hierarchy of power or supreme positions or higher positions within the British bureaucracy. That is why they were advocating for Indianization of services, right? So they were empowered enough to mobilize the masses. See, masses were poor, they were powerless, esteem or status भी low था. So they could not engage in revolutions. So these people
provided ideology to them, provided they mobilized resources, and thereby they carried out these revolutions, right? तो वो ये यहां से आप लिंक कर सकते हो इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है. ऑल्सो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज Andre Bete's harmonic and disharmonic systems. Harmonic systems and disharmonic system. आंद्रे बेते बात करते हैं इसकी, ठीक है. हार्मोनिक सिस्टम्स वो बोलते हैं, राइट, जिनमें क्या हार्मनी है, कन्फ्लिक्ट नहीं है, जिनमें क्या है, ऑर्डर है, ठीक है. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हार्मोनिक एंड डिसहार्मोनिक सिस्टम्स. व्हाई देयर इज ऑर्डर? बिकॉज वो बोलते हैं देयर इज अ काइंड ऑफ कॉन्ग्रुएंस और कंसिस्टेंसी बिटवीन द नॉर्मेटिव ऑर्डर that is the values or norms, this is the normative order, and the existential order, right, that is the actual reality. इससे क्या मतलब है? और यहां पे हम देखेंगे कि डिसहार्मोनिक सिस्टम्स में क्या है, डिसहार्मोनिक सिस्टम्स में क्या है, ये ऑर्डर, ये कॉन्ग्रुएंस प्रिवेल नहीं करता, इसलिए डिसहार्मनी है, यहां पे डिसहार्मनी है, और ये क्या है, यहां पे क्या है, आपका कन्फ्लिक्ट होगा, राइट. इसका रीजन क्या है? सी रीजन इज दिस. जो आपके जो हार्मोनिक सिस्टम्स है, इसमें बेटे बोलते हैं कि बिटवीन द नॉर्मेटिव ऑर्डर, दैट इज द वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, राइट, और एग्जिस्टेंशियल ऑर्डर, द एक्चुअल रियलिटी, उनके बीच में एक कॉन्ग्रुएंस है, एक काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी है. व्हाट यू आर प्रीचिंग इज व्हाट यू आर प्रैक्टिसिंग, राइट. वो कैसे है? सी, वो बोलते हैं कि यहां पे society used to preach and profess inequality, right, क्योंकि ये क्या है, किसके थ्रू? नॉर्मेटिव ऑर्डर के थ्रू. वैल्यूज और नॉर्म्स क्या थे? इनइक्वालिटी को प्रीच और प्रोफेस करते थे, जस्टिफाई और रैशनलाइज करते थे. इनइक्वालिटी वाज इन फैक्ट कंसिडर्ड नेचुरल, जस्ट, प्रॉपर, फेयर एंड लेजिटिमेट, राइट, ठीक है. तो अगर हम देखेंगे कास्ट सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे हमने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ गुणास, डिफरेंट क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स और ट्रेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑन द बेसिस ऑफ दैट द स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम इमर्ज्ड. सो थ्रू दिस इट वाज गिवन आइडियोलॉजिकल लेजिटिमेसी. सो इनइक्वालिटी वाज, society was preaching or institutionalizing inequality. Inequality was considered normal, just, proper, fair and legitimate in society due to the rationalization or justifications that were given on ideological basis, by ideology, that is the values and norms of the society. They were preaching these inequalities. ऐसे ही गुणास, जब हम देखा गुण जो है हमारे लोगों के, राइट, सात्विक गुण, तामसिक गुण और राजसिक गुण, इन तीनों का बेसिस में हमने स्ट्रेटिफिकेशन किया था कास्ट सिस्टम का. आंद्रे बेते बात करते हैं उसके बारे में. ऐसे ही आप देखो धर्मशास्त्रास के बेसिस पे जस्टिफिकेशन मिलती है, राइट, या स्मृतिज. ये धर्मशास्त्रास मतलब जैसे मनुस्मृति अब हो गया आपका, राइट. सो दीज हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट्स, दे आर जस्टिफाइंग इनइक्वालिटी. कैसे हमने देखा था
कि मनुस्मृति में कैसे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है कि ब्राह्मण्स दे सुप्रीम बीइंग क्रिएटेड दिस फोरफोल्ड division of society or the varna, and these were created from or emerged from different parts of this supreme creator. Brahmins emerged from the mouth of the supreme creator, Vaishyas from arms and Kshatriyas from arms and Vaishyas from thighs and Shudra from the feet, and untouchable were simply not part of the hierarchy. So you are preaching inequality as well as यहाँ पे क्या है, you are practicing inequality. So there is a kind of congruence or consistency between the normative order and the existential order that is the actual reality. So यहाँ पे क्या है, लोग क्या है उसको एक्सेप्ट करते हैं, राइट. कास्ट सिस्टम आप देखो हमारा कि कास्ट सिस्टम इसमें क्या है, ऑर्डर आएगा तो स्टैग्नेशन आएगा, राइट. अगर आप अपनी कास्ट सिस्टम को देखो, स्टैग्नेशन था, सोसाइटी हमारी चेंज नहीं हुई थी. हम बाद में आगे देखेंगे कि ब्रिटिशर्स क्रिटिसाइज्ड इंडियंस और बोलते हैं इन विलेजेस को, इंडियन विलेजेस को, जो कि टाइमलेस था, टाइमलेस चेंज नहीं हो रहा था ड्यू टू कास्ट, स्टैग्नेशन आ गया था, राइट. इट वाज सो मच इन ऑर्डर, so much social stability that was there that Britishers बोलते हैं it was not changing, conditions was not changing. तो इसको बोला गया little republics. Republics इसलिए बोला गया because all these villages they were kind of like self sufficient. इसको क्रिटिसाइज भी किया एम.एन. श्रीनिवास ने, हम बाद में देखेंगे. ऐसे ही मार्क्स बोलते हैं एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, राइट. हम पेपर 2 में पढ़ेंगे, फर्स्ट में नहीं पढ़ा. वो इंडियन सोसाइटी को इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं, नॉट चेंजिंग, स्टैग्नेटिंग, आर्केइक, आउटडेटेड सोसाइटी. और उसको बोला गया कि वो सोसाइटी फिट ही नहीं करती है मार्क्स की इवोल्यूशनरी स्कीम में, मार्क्स की मोड ऑफ प्रोडक्शन में. इसलिए उनको नया मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है डिवाइस करना पड़ा, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रहा वहां पे. जैसे मार्क्स अपनी सोसाइटी से में देख रहे थे कि चेंज हो रहा था, वो हो ही नहीं रहा. इनफैक्ट मार्क्स praised the Britishers or colonialists to impose the change from outside, to impose the change from outside, that is to impose exogenous change in India forcefully in a top down manner by the British. Only with the intervention of British, he says, this change could take place. ठीक है. Now this is what Bethe was talking about when he was talking about harmonic systems. वो बोलते हैं डिसहार्मोनिक सिस्टम में क्या है, डिसहार्मनी और कन्फ्लिक्ट है, राइट. डिसहार्मनी और कन्फ्लिक्ट है बिकॉज देर इज इनकंसिस्टेंसी और इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन द नॉर्मेटिव ऑर्डर. सो ही सेज हियर whereas inequality here, whereas equality is preached, equality is preached and professed, right. For example, our constitution article 14-15 talks about equality, the formal equality is established. Equality before law, all considered will be considered, all citizens will be considered equal in the eyes of law. State will not discriminate between its citizens. So here constitution, through constitution, this formal equality is established, right. See, you could write this down in your own words, ठीक है. This formal equality is established, right. Whereas inequality is practiced. Existential order क्या, inequality is practiced and equality is preached or professed, whereas inequality is practiced. Because when you say on the ground, in reality on the ground, there are socio-economic inequalities. Socio-economic inequalities of gender, race, caste, class, right, ethnicity, and that is why वो बोलते हैं कि जब ये होगा तो इसमें हार्मोनी होगी और डिसहार्मनी कॉन्फ्लिक्ट होगा, एंड दैट इज व्हाई conflict is taking place
in modern India, in modern or contemporary India, and we could see various kind of collective actions or protests, like for example Dalit movements, Dalit assertion is taking place, right, challenging the norms of caste, because you are preaching inequality whereas your Dalits are still being discriminated against. In reality the situation has not changed to that extent, right? Similarly, women's are organizing themselves, women's movements is taking place, right? Similarly, you see caste conflicts are increasing in society. See why caste conflicts are increasing? See, जब तक ब्राह्मण्स के डिस्पर्स्ड क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी थी, सॉरी दलित्स की क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी थी, they were lower at all the scales, right? When harmonic systems था, when everything inequality was preached and as well as practiced, तब तक क्या है, दलित्स were not empowered enough, right? They were not assertive enough. Reservation आने के बाद especially they started getting ascension within the economic criteria, and that is how they gained confidence to launch their various movements, and that is how the Dalit assertion is happening within the society, right? ठीक है, तो एक तो होता है कास्ट ऑपरेशन, जिसमें आप बिल्कुल नीचे तबके के हो तो आपको ओप्रेस किया जा रहा है और आप उसके खिलाफ रिवोल्ट नहीं कर रहे हो, तो वो क्यूमुलेटिव इनइक्वालिटी होगा या फिर हार्मोनिक सिस्टम्स में होगा. बिकॉज इवन दलित्स यूज्ड टू कंसिडर दिस इनइक्वालिटी नॉर्मल कास्ट इनइक्वालिटी. अगर आप शूद्रस में भी देखो तो उनमें भी डिफरेंट क्या थी, डिविजन्स थी, और शूद्र जो अपने आप को ज्यादा प्योर समझते थे वो ओप्रेस करते थे लोअर शूद्रास को, राइट? सो इवन शूद्रास सेड इट हैड द sanction of God. लेकिन in the contemporary India it is changing. People are getting more empowered, more educated, more enlightened. You are preaching inequality, preaching equality. Constitution is preaching equality, right? तो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. कॉन्फ्लिक्ट तभी हो रहा है बिकॉज व्हेन अनदर कास्ट कोड राइज, तभी तो कॉन्फ्लिक्ट होगा. अगर दूसरी कास्ट राइज ही नहीं करेगी देन इट विल बी वन साइडेड ऑपरेशन ऑफ अनदर कास्ट, राइट? वन मोर थिंकर दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज Dipankar Gupta, right? See, now the last thinker that we will be talking about is Dipankar Gupta. See, Dipankar Gupta बोलते हैं कि जो स्ट्रेटिफिकेशन हम बेसिकली दो टाइप्स और दो कैटेगरीज में उसको हम देख सकते हैं. जो कन्वेंशनल अप्रोच थी स्ट्रेटिफिकेशन को देखने की, वो एक हमारी थी, वो वर्टिकल अप्रोच थी, राइट? जहां पे क्या थी, वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन थी, राइट? वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स different stratas were arranged hierarchically in a top down manner, right? Vertical manner, right? तो यहां पे क्या है, hierarchy और inequality थी, ठीक है? राइट? वो बोलते हैं कि stratification, why should it be only seen in vertical terms, right? जहाँ पे हम स्ट्रेटिफिकेशन करें ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकल टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ हिरार्की एंड इनइक्वालिटी, एंड देयर बाय यू आर एक्सटेंडेड डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और रिवॉर्ड्स इज टेकिंग प्लेस, राइट? वो बोलते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन कुड ऑल्सो बी हॉरिजॉन्टल एज वेल. और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होगा, डिफरेंसेस और इक्वालिटी होगी, राइट? डिफरेंसेस और इक्वालिटी होगी. वहां पे क्या थी, हिरार्की और इनइक्वालिटी थी. मतलब इसका मतलब क्या है? सी, इसका मतलब ये है कि यू विल बी प्लेसिंग वेरियस ग्रुप्स और स्ट्रेटा, राइट, एज डिफरेंट हॉरिजॉन्टल एंड इक्वल ब्लॉक्स फेसिंग ईच अदर, राइट? सो डिफरेंट ग्रुप्स और स्ट्रेटा विल बी प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, राइट? दे विल बी प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, राइट, एडजेसेंट टू वन अनदर, राइट? दे विल नॉट बी प्लेस्ड वर्टिकली, रादर दे वुड बी प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली. तो इनमें एज सच इनइक्वालिटी नहीं होगी, राइट? सो दे दीज डिफरेंट ब्लॉक्स or different people who are placed in different categories, right? So they are placed horizontally, right, in blocks, right? ठीक है, तो उनके बीच में क्या है, कोई कैटेगराइजेशन होगी. So इसको हम ज्यादा अच्छे मैनर से ऐसे देख सकते हैं, राइट? दिस इज मोर बेटर डिपिक्शन, दिस इज नॉट अ बेटर डिपिक्शन, राइट? राइट, ठीक है. हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन वेयर इन डिफरेंट ग्रुप्स और स्ट्रेटा
आर प्लेस्ड इन डिफरेंट हॉरिजॉन्टल एंड इक्वल ब्लॉक्स फेसिंग ईच अदर। अगर आप देखो किसी हम क्या सोसाइटी को अगर हम देखा जाए तो बेसिकली सोसाइटी में जो डिफरेंसेस हैं उनमें एज सच क्या है, इनबिल्ट कोई इनइक्वालिटी नहीं है, रादर जस्ट डिफरेंसेस ही हैं। फॉर एग्जांपल लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस, देयर इज नो रीजन एज टू व्हाई यू शुड अज्यूम कि वन लैंग्वेज शुड बी सुपीरियर टू अनदर लैंग्वेज, राइट? हिंदी इज एज मच सुपीरियर एज उर्दू और एज इंग्लिश। देयर इज नो hierarchy of languages as such, right? You cannot consider a particular language or culture as less civilized than another culture or language, right? So basically they should be placed horizontally and equally because these are just differences. So stratification could also be done in a horizontal manner, that will be based on difference and equality. ऐसे ही आप रिलीजन देखो तो इन सेकुलर सोसाइटीज बेसिकली all religions are considered equal. That is the concept of Indian secularism. There should not be any conception in which why should one religion be looked down at, why should people of one religion be looked down at, right? All the religions are equal. So horizontal stratification. तो जो आपकी जो फंडामेंटलिस्ट सोसाइटीज होंगी या फिर जहां पे कम्युनलिज्म ज्यादा होगा, राइट, वहां पे क्या होगा, या फिर कल्चरल और रिलीजियस नेशनलिज्म होगा, वहां पे क्या है, एक रिलीजन को इंफीरियर समझा जाएगा, बट देयर इज नो रीजन एज टू व्हाई दे शुड बी कंसिडर्ड इंफीरियर. सो वी कैन ऑल्सो प्लेस देम हॉरिजॉन्टली एज वेल. ऐसे ही सेक्स, मैन और वुमेन, हॉरिजॉन्टल कैटेगराइजेशन हो सकता है, मैन वुमेन, बिकॉज दे कंस्टिट्यूट डिफरेंट कैटेगरीज, they constitute a different class of people on the basis of sex. They are different, but they should be placed in horizontal blocks. So stratification should be horizontal based on difference and equality. As is similar, same thing goes for race and ethnicity. People of different color, skin, different cultures, right? वो बोलते हैं लेकिन horizontal stratification convert होती है, यही जो है, right? इसको आप ऐसे प्लेस कर दो, right? इसको रोटेट कर दो, then it will be like this. ये कन्वर्ट होती है ड्यू टू प्रीजुडिस एंड प्री जजमेंट्स, राइट? प्रीजुडिस, राइट? जुडिस डील्स विथ जुडिशरी. यू आर जजिंग समथिंग, यू आर in a preconceived manner or using preconceived notions, you are indulging in prejudgment. और prejudices जब आ जाते हैं सोसाइटी में, तब जाके क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन कन्वर्ट हो जाती है वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन में, ठीक है? और वो बोलते हैं सी, हमें अगर समाज में खाली हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन है या फिर खाली डिफरेंसेस एज सच हैं, राइट, देयर इफ देयर ओनली डिफरेंसेस एंड इक्वालिटी इन सोसाइटी एंड नॉट हिरार्की एंड इनइक्वालिटी, देन हमें क्या है, वी शुड स्टडी सोशल डिफरेंशिएशन ओनली. तब तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की जरूरत है नहीं अगर खाली यही है. लेकिन दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं. दिक्कत ये है, स्ट्रेटिफिकेशन में हिरार्की भी है और डिफरेंस भी है, दोनों ओवरलैप कर जाते हैं. दोनों जब मर्ज कर जाते हैं आपस में, तब स्ट्रेटिफिकेशन में हिरार्की इनइक्वालिटी के साथ साथ डिफरेंसेस भी आ जाते हैं. अगर खाली डिफरेंसेस होता या खाली हॉरिजॉन्टल होता तो एज सच हम उसे सोशल डिफरेंशिएशन बोलते हैं. इसको दीज आर सोशल डिफरेंशिएशन, तो हमें स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती. और अगर हॉरिजॉन्टल मान लो डिफरेंसेस भी नहीं रहते इंडिविजुअल्स के बीच में, तब भी वो बात कर रहे हैं, तब हमें स्ट्रेटा की जरूरत नहीं थी. अगर डिफरेंसेस नहीं होते इंडिविजुअल्स के बीच में तो खाली हिरार्की और इनइक्वालिटी होती. व्हाई? क्योंकि डिफरेंट इंडिविजुअल्स, अगर हम नेचुरल इनइक्वालिटी की बात करते हैं, अगर अब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन नहीं हो रहा है, अब स्ट्रेटा ही नहीं है, डिफरेंसेस ही नहीं है, तो बेसिकली इट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल. तो हम सोशल इनइक्वालिटी को पढ़ते तब भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं थी, राइट? तो वो एक उसको स्ट्रेटिफिकेशन को हिरार्की और डिफरेंस के नजरिए से देखते हैं, राइट? स्ट्रेटिफिकेशन में हिरार्की और डिफरेंस दोनों है, राइट? और अगर डिफरेंस ना हो, खाली हिरार्की हो, तो उसको सोशल इनइक्वालिटी बोलेंगे. ऐसी हिरार्की ना हो, डिफरेंस हो, तो उसको क्या बोलेंगे? सोशल डिफरेंशिएशन. अगर खाली एक ही चीज प्रेजेंट है, तब क्या है, हमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है. तब हमें या तो सोशल डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा इन केस ऑफ दिस डिफरेंसेस, और हमें पढ़ना पड़ेगा सोशल इनइक्वालिटी इन केस ऑफ दिस इनइक्वालिटीज ड्यू टू इननेट कैपेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स.
तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम ही यही है कि ये दोनों आपस में क्या मर्ज कर देते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, और इसी वजह से क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन में जब हिरार्की भी आ जाए और डिफरेंस भी आ जाए तब स्ट्रेटिफिकेशन बनेगा दोनों चीज़ों को मिला के। दिस इज व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। एक कोट है, अच्छा कोट आप लिख सकते हो दीपांकर गुप्ता का। दीपांकर गुप्ता बोलते हैं इन्हें यूटोपिया, राइट, जहां पे एब्सोल्यूट इक्वालिटी है सोसाइटीज में, राइट, जिसमें कोई हिरार्की और इनइक्वालिटी नहीं है। तो बात बनती है डिफरेंसेस और इक्वालिटी की, ठीक है, डिफरेंसेस और इक्वालिटी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन, डिफरेंशिएशन ही बच जाता ना। इन्हें एब्सोल्यूट, इन यूटोपिया दैट इज अ सोसाइटी ऑफ एब्सोल्यूट इक्वालिटी, डिफरेंसेस वुड नॉट कैरी traces of hierarchy in them. One could with equal facility and without prejudice move from being a fisherman to a poet, right? Poet and fisherman will be considered equal. A nuclear scientist and a rickshaw wala will be considered equal, right? Because these are just differences, right? To a poet, or from one religious belief to another. You could be a Hindu at one point of time, a Muslim at one point of time. You could then again be a Hindu and then be a Christian. You could jump from one religion to another if these are just differences. But these are not just differences. These become inequalities, right? इसको लिंक करो आप मार्क्स कंसेप्शन ऑफ टोटल मैन। वो यही बोलते हैं कि आदमी की डिफरेंट टैलेंट्स होती हैं, डाइवर्सिटी होती है उसमें, तो ही कुड एक्सरसाइज डिफरेंट ऑक्यूपेशंस एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। इन द मॉर्निंग ही कुड बी अ फिशरमैन, at the night he could be a poet. The concept of a total man, a complete man, जो खाली एक उसमें नीश में नहीं रुका हुआ है, right? So this was your introduction to stratification. हमने stratification, hierarchy, inequality, difference और सारे इनको क्या है पढ़ा है। इन नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद जो टॉपिक्स हैं वो है पॉवर्टी और सोशल एक्सक्लूजन का। मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या है, आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी एंड सोशल एक्सक्लूजन। फर्स्ट आई वांट टू डील विद इज द थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सो इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी टॉकिंग अबाउट थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉवर्टी एंड सोशल एक्सक्लूजन, राइट। तो इन दो लेक्चर्स में हम ये सब चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट।